جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فاروق ڈاری صاحب سے. فاروق ڈاری صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے، پلیز کنٹینیو کیجیے. دیکھیں، ہم نے خان صاحب کو دیکھا ہے کہ اگر انہوں نے کبھی بھی تنقید کی وہ تعمیری تنقید کی ہے. جب اتنے بڑے لاکھوں لوگوں کے جلوس کو وہ لے کے چلے ہیں تو ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. وہ انہوں نے جلسے کیے تو وہاں پہ کوئی ہردرمی نہیں، اور ہمیشہ اپنے کارکنوں کو کہتے رہے کہ پرامن طریقے سے جانا ہے. جب آپ نے دیکھا کہ راول پنڈی کے اندر اتنا بڑا جمع غفیر تھا، ایک اشارہ اگر وہ نیگیٹو دیتے تو کیا سے کیا ہو جاتا. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ جس طرح قائد اعظم نے قانون کی پاسداری کی ہے، ہمیشہ عمران خان نے بھی ہمیشہ پاسداری کی ہے. اور یہ وہ شخص ہے جس کو نہ کوئی خرید سکتا ہے، نہ کوئی خریدنے کی جرات کرے گا. اس لیے کہ ہمارا مسئلہ ہی مانیٹری ہے اس ملک کا، کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اسی بک جاتے ہیں، چمک دھمک میں آ ہمارے جاتے. ایم این ایز اور ایم پی ایز بھی بک جاتے ہیں ڈاری صاحب. ہمارے ایم این اے، ایم پی اے، ہمارے اداروں کے سربراہان سب. آپ مجھے بتائیں نا، میں باجوہ کے بارے میں کہتا ہوں 6 سال کے اندر وہ کون سا بزنس میتھڈ تھا جس میں آپ نے 12 ارب روپے ایف بی آر میں آپ نے ڈکلیئر کیے. مجھے بتاؤ، میں بھی ایک بزنس مین ہوں، میں ایک اینالسٹ بھی ہوں. مجھے بتاؤ وہ کون سا ایسا بزنس میتھڈ ہے جس میں 6 سال کے اندر آپ نے 12 ارب روپے ایف بی آر کے اندر آپ نے ڈکلیئر کیے ہیں. 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ جو نواز شریف کو یہاں سے بھیجا، یہ مفت میں تو نہیں بھیجا ہے. جب عمران خان کہہ رہے تھے 7 ارب روپے کا آپ بانڈ بھریں، تو وہ تو نہیں 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ گئے. آئی ایم سوری، یہ ڈیل کے بغیر کوئی نہیں گئے. یہ تو انہوں نے پہلے ان لوگوں کو اندر کیا، اس کے ریٹ بڑھے اور ان سے ڈیل کر کے پھر باہر گئے. تو یہ لوگ کیوں ایگزمپٹڈ ہیں؟ وائی دے آر ایگزمپٹڈ؟ کیوں؟ چند ایک کالی بھیڑیں جس کی وجہ سے ہمارا ادارہ بدنام ہو رہا ہے. ہماری پاکستانی فوج سے ہماری پاکستانی عوام دل و جان سے محبت کرتی ہے، قربان کرتی ہے، لیکن چند ایک لوگوں کی وجہ سے ادارے کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہے. تو ادارہ اپنے لوگوں کے اوپر کورٹ مارشل کیوں نہیں کرتا؟ یہ ادارے کا فرض ہے کہ وہ اپنے قانون کے مطابق ان کو ٹرائل کرے. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ مشرف کو آپ نے یہاں سے جانے دیا سلوٹ مار کے. کیوں؟ بالکل ٹھیک ہے. اختر ارائی صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. اختر ارائی صاحب، خان صاحب کو گرفتار کرنے کے بعد، دیگر اراکین کو گرفتار کرنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی معاشی صورتحال پہلے تو بدتر تھی، اب بدترین ہو گئی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ پہلے سیاسی بحران اور اب معاشی بحران. جی بالکل، دیکھیں جو معاشی حالات ہیں ملک کے بہت پہلے ہی بہت برے ہیں، اور یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. مگر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف 1 سال ہو گیا ہے، ابھی کوئی خاص اتنا زیادہ پروگرام نہیں ان کو دیا گیا. اب آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے پاکستان کے لیے جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے، کیونکہ اور کوئی ایسا ہے ہی نہیں. ادروائز تو پاکستان جو ہے اس وقت تباہ ہونے کی طرف جا رہا ہے. بجٹ کے بعد کیا حالات ہوں گے تو پتہ نہیں. اس وقت مسائل کا انبار لگ گیا ہے. وہ کون سی مطلب چیز ہے کہ ہم اس کی یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ریکارڈ توڑ دیے. ہم نے اتنا کم از کم ہمارے زر مبادلہ پہلے کبھی نہیں تھا. ہمارے پاس تو پیٹرولیم پروڈکٹس نہیں ہے، ہمارے پاس فوڈ سیکیورٹی نہیں ہے، اس وقت ذخائر نہیں ہے سفیشینٹ. ہمارے پاس کیا چیز اویلیبل ہے؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اب جب اختر ارائی صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت ملک کی کنڈیشن کو ٹیکل نہیں کر پا رہے، ان کی کابینہ جو ہے وہ ٹیکل نہیں کر پا رہی، یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل بالکل، یہاں پر مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ نہ صرف سیاسی، معاشی، مطلب ہر طرح کا بحران ہے. یعنی کہ ایسی چیز پہلے ہم نے نہیں دیکھی. سری لنکا والی صورتحال ہو رہی ہے. ایسی صورتحال ہے، اب ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ یہ عوام اس وقت سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ اب ہمارے ادارے بھی محسوس نہیں رہے. اب ہم یہاں پر سیاست کا کیا ہوگا، فیوچر کیا ہے پولیٹکس کا. سیاست دانوں کو اپنی اتنی پڑی ہوئی ہے کہ وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے مسائل حل نہیں کر سکتے. وہ اگر ایشو نکالے جائیں تو وہ کون سا پولیٹیشین ہے جس کے اوپر کیسز نہیں بنتے؟ اختر ارائی صاحب، مذاکرات ہوئے تو تھے لیکن ناکام ہو گئے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے.
मुज़ाकरात हुए थे लेकिन नाकाम हो गए थे। और जहाँ तक शहबाज शरीफ की बात है और ये पूरे टोले की 13 पार्टियों की, ये आके अपने नैब से इन लोगों ने कानून अपने हक में बनाया और 1100 अरब रुपए के केसेस माफ़ किए, जो कि हमारे ख़जाने पे एक बहुत बड़ा बोझ था। और लोगों ने आके जो मफरूर थे, जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े वो लगे हुए थे, आके सारे माफ़ करके करोड़ों रुपए की तनख्वाहें उन्होंने वापस, मैं बात कर रहा हूँ इसहाक डार की। तो ये चीजें तो सबसे पहले खत्म जानी होनी साहब, चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि इत्तेहादी तो वो भी हैं, तो मैं वो भी इससे कोई एग्जम्प्टेड नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी। लेकिन हम मौजूदा हुकूमत को ही क्यों तनकीद का निशाना बनाते हैं? हमने देखे ना, कहते हैं ना कि जब इलाके का SHO, अगर इलाके का थानेदार जब ईमानदार आ जाता है तो मोहल्ले के सारे चोर एक जगह जमा हो जाते हैं। इस वक्त मुल्क में भी ये हुआ। यही जरदारी के लिए ये कहते थे, क्या कहते हैं शहबाज शरीफ, कि मैं सड़कों पे घसीटूंगा, इसका पेट फाड़ के मैं पैसे निकालूंगा, मैं स्विस बैंक के पैसे निकालूंगा, सरे महल के पैसे निकालूंगा। आज साथ जाके बैठ गए। यही PMLN भुट्टो की जब नाजायज उसके ऊपर उनको फांसी दी गई, इन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी। यही बेनज़ीर भुट्टो को पीली टैक्सी कहा गया था और उसके लिए भराना तस्वीरें उसे हेलीकॉप्टर से भेजा गया था। आज ये उनके साथ बैठे हुए हैं। तो ये आप देखें ना कि ये कोई ये एक मॉरल होता है। तो ये लोग बेवकूफ़ नहीं है, चाहे जरदारी साहब कितने भी खामोश है कि साइड पे, वो पूरा इस हुकूमत का हिस्सा है। वो पूरा हुकूमत का हिस्सा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है वो सिर्फ नून लीग को बनाया जा रहा है। मरियम नवाज की हम बात करते हैं, हम शहबाज शरीफ की बात करते हैं। मेरा सवाल राना साहब से, राना साहब, जरदारी साहब की सियासत को सलाम पेश करते हैं हम। आप हुकूमत में भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी हैं, मुज़ाकराती टीम में हमने देखा यूसुफ रज़ा गिलानी थे। लेकिन जरदारी साहब को तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा रहा जितना नून लीग को बनाया जाता है। देखिए जी, पहले तो मैं डाडी साहब की एक बात का सवाल करूं कि डाडी साहब तजिया निगाह हैं या PTI के रुकून है। पहले तो ये क्लियर करें, एक बात ये क्लियर करें, एक बात। दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है कि जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी उस वक्त मुस्लिम लीग नून नहीं थी, 9 सितारे थे। तीसरी बात यह है कि जनाब, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पसंद है, जमहूरियत को पर यकीन रखती है। आज चौधरी परवेज इलाही साहब पंजाब के सबसे बड़े डाकू PTI के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। आप जिस शख्स को वो चपड़ासी नहीं रखते थे वो PTI की गवर्नमेंट में सबसे बड़ी मिनिस्ट्री पर मौजूद थे। तो कहने का मकसद ये है कि जो फिर जिनको वो गलत कहते थे PTI के अंदर वो बड़ी बड़ी वजारतों पर थे। तो आप किस तरह से किसी पे उंगली उठा सकते हैं? आप तो खुद उन खेल का हिस्सा, यानी कि अगर आपके पास से छोड़कर, हमारे पास से छोड़ के आपके पास चले गए तो वो अच्छे हो गए, हमारे पास थे तो वो ख़राब हैं। नहीं, फैसला इकाई की बुनियाद पे होना चाहिए। आपकी टीम के अंदर भी लोग अच्छे होने चाहिए। आपके पास जिन लोगों ने जदोजहद की उन लोगों को आपने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे तनकीद नहीं करती, सियासत है, ये सियासत का हिस्सा होता है। तनकीद आप करें, शौक़ से करें। मैं ये कहता हूँ अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। खान साहब जिस अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे, जिस इंसाफ की बात कर रहे थे, उन्होंने उस पर कितना अमल किया? 3 साल 7 महीने वो नहीं कर सके। और फिर उसके बाद आज सूरत हाल आप खुद देख रहे हैं। अच्छा, बड़े पीसफुल कारकुन थे तो PTV के ऊपर हमला किसने किया? क्या पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने किया है? वही तहरीक इंसाफ के लोग थे जिन्होंने PTV पे हमला किया। बात होगी तो फिर ये बात होगी 1997 में सुप्रीम कोर्ट में किसने हमला किया? नून लीग ने हमला किया। सर ये बातें नहीं करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा कोई इकदाम नहीं कहा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रही है। बात मैंने कहा ना कि हम सबको देखिए, नून लीग का जवाब तो नून लीग वाले देंगे, हम नहीं देंगे। इत्तेहादी है तो क्या हो गया? हम किसी के कोलो फेल के जिम्मेदार तो नहीं है। हमारा अपना कोलो फेल होगा, हम उसके हिसाब देंगे। उनका अपना है, आज इमरान खान का अपना है, वो अपना जवाब देंगे। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान के खिलाफ की बात नहीं है। खान साहब के खिलाफ है? नहीं, मैं खान साहब के खिलाफ नहीं हूँ। खान साहब के
तमाम वीडियो क्लिप्स निकाल लें, ईमानदारी से आप उनके अल्फाज सुन लें, सुबह कुछ शाम को कुछ। क्या एक लीडर के ये अल्फाज होते हैं कि यू टर्न लेके झूठ बोलना? मैं ये समझता हूँ, मैं खान साहब नहीं उनके बयानिए के खिलाफ हूँ, वो जो कुछ कहते हैं ये नामुनासिब बात है। उनको कौमी लीडर कहते हैं लोग। बिल्कुल ठीक है राणा साहब, गुमराह ब्रेक का किया ताज आ रहा है, है, ब्रेक उसको लेंगे, उनको बड़ी ब्रेक के बुरी बाद तरीके से वापस गुमराह आके किया इन्होंने। इस पे बात करेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब आपके वक्त का। जी, खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और आज हमने देखा कि असद उमर की जो गिरफ्तारी है उसी भी अमल में लाया गया और अब शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लगता कुछ ऐसा ही है कि जो पीटीआई के सीनियर अरकान हैं उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीटीआई का अगला लाए अमल क्या है, आप लोग क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि ये अरेस्ट करते जा रहे हैं और लोग इनकी मजम्मत किए जा रहे हैं। जी, आज शहर कराची के अंदर ही आप देखें तो ट्रैफिक की सूरत हाल जो रोजाना और यौमिया होती है उसकी 20% की ट्रैफिक, जी, इसका मतलब ये 80% लोग जो घर बैठे वो एक तरीके से इस एहतजाज में शरीक हो गए। ठीक है। इंशाल्लाह आप देखते रहिएगा कि जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ता है तो वो रंग लाता है। नहीं फिरदौस साहब, जरा मुझे ये बताइएगा कि आप इन चीजों को कैसे डिफेंड करेंगे? अपने तरीके से निकलेंगे, सड़कों पे आएंगे, गलियों और दफ्तरों में अपने पास जब बैठेंगे तो वो उन तमाम अनासर को बुरा भला भी कहेंगे जो इस मुल्क के आईन के साथ खेल रहे हैं, जो इस मुल्क की किस्मत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते, जो जमहूरियत तो कहते हैं लेकिन जमहूर पे यकीन नहीं रखते। इससे कि जब जमहूरियत और जमहूर पे यकीन हो तो इलेक्शन लाजिम व मलजूम है। तो जो लोग इलेक्शन से भागते हैं वो जमहूरी नहीं कहला सकते। और जिस मुल्क में वक्त पे इलेक्शन ना हो, आइन के मुताबिक ना हो, तो उस मुल्क में जमहूरियत भी मौजूद नहीं होती। यहाँ आइन के साथ फिरदौस साहब, मैं ये सवाल कर रही हूँ आपसे। में अब आने लगा है। इस वक्त बताइए चीफ मिनिस्टर पंजाब की क्या हैसियत है? वो तो सिर्फ 90 दिन के लिए बना था। वो किस तरीके से ऑर्डर दे रहा है, उसके ऑर्डर की पासदारी ये पुलिस कैसे कर रही है, ये आइंदा तारीख में कैसे लिखा जाएगा? फिरदौस साहब, मुझे सर ये बताइए कि आप इस चीज को कैसे डिफेंड कर रहे हैं? लाहौर में कोर कमांडर के घर पे हमला हो गया, यास्मीन राशिद साहिबा कहती हैं कि हमने कहा है कि पुरअमन एहतजाज करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि लाहौर में कोर कमांडर के घर पे हमला हो गया, जीएचक्यू के गेट के बाहर जो है वो कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। ये कौन लोग हैं? ये देखिए, पहली चीज तो ये है, पुरअमन एहतजाज के ऊपर शेलिंग कौन करता है? बिल्कुल ठीक है। मैं था मौजूद शारे फैसल पे कल, हम तो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। शेलिंग किसने की, लाठीचार्ज किसने किया, गोलियां किसने चलाई? तो हमारे 32 लोग मारे गए, उनके ऊपर गोलियां हमने मारी है। हवाई फायरिंग करते हैं लोग, रबर बुलेट्स फायर करते हैं, वाटर कैनन आती है। ये किस जमहूरियत में ये होता है? ये तो जुल्म और तशद्दुद है। और जब पाकिस्तान के आइन की तहफ्फुज़ की बात हो तो आइन तो ये कहता है कि हर पाकिस्तानी के ऊपर फर्ज है कि वो अपने आइन के लिए निकले। मैं तो अपने आइन के तहफ्फुज़ के लिए निकला हूँ। जो आइन के खिलाफ वर्जी करे मैं उससे लड़ने को भी तैयार हूँ। अच्छा फिरदौस साहब, यहाँ पे हम बात कर रहे थे खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, आप बात कर रहे हैं प्रोटेस्ट के हवाले से। यकीनन मैंने आपसे ये सवाल भी किया था, लेकिन उसके बाद मुल्क की जो सूरत हाल है वो बस से बदतर होती जा रही है। जमान पार्क पे भी हम देख रहे हैं कि अफराद जो है वो मुश्तइल हैं। होने क्या जा रहा है अब? क्या खान साहब को ना पहली चीज, बद से बदतर सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? माशी तौर पे हुकूमत 1 साल हो गया IMF से एग्रीमेंट नहीं कर सकी। महंगाई को रोकने आई थी और उठा के 46% महंगाई पे पहुंचा दिया। 200 रुपए डॉलर करने आई थी, 300 पे डॉलर पहुंचा दिया। तो इसकी जिम्मेदार तो वो। फिर पहले कहते थे इमरान खान तुम असेंबलियां डिसॉल्व कर दो पंजाब और KP की, फिर हम इलेक्शन करा देंगे पूरे पाकिस्तान में। हमने वो भी करके दिखा दिया। किधर भाग गए? किस बात पे कायम रहते? हमें यू टर्न वाले कहते हैं यू टर्न तो ये करती है नानी जी, और सब लोग। इसलिए
जिम्मेदार जो हैं, जो लोग हुकूमत में हैं वही जिम्मेदार होते हैं, उनको ही दरवाजे खोलने होते हैं। उनके पास क्या हाल है इस वक्त के मसाइल का, बताएं उनके पास हल से ये कि इलेक्शन ना कराओ। अच्छा, मुझे कहते थोड़ा हैं एक कि चीज, उनके पास 21 अरब रुपए नहीं है। फिरदौस साहब मुझे थोड़ी एक चीज जरा समझा दें सर, मुझे एक चीज थोड़ी सी समझा दें। बात ये है कि इमरान खान साहब पे 121 मुकदमात थे, फिर हमने देखा कि उनकी ज़मानत जो है वो भी मंजूर कर ली जाती है, लेकिन 2 रोज़ कबल जब ISPR की एक प्रेस रिलीज जारी होती है जिसमें उन्होंने कहा है कि खान साहब के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, अफसोसनाक हैं, और अगले ही दिन हमने देखा कि खान साहब को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। जो पिछले 2 महीनों से जो चीज़ें चल रही थी कि आज गिरफ़्तारी मुमकिन है, आज गिरफ़्तारी मुमकिन है, वो नहीं होती थी, लेकिन 2 दिन कबल जो है यानी कि परसों जो है वो उनकी गिरफ़्तारी हो गई। क्या समझते हैं आप कि आप देख रहे हैं अदलिया की तरफ और एस्टैब्लिशमेंट नहीं है आपके साथ? जी देखिए, मैं तो एक चीज जानता हूँ, इस मुल्क के अवाम जो है बड़े समझदार है। एक लीडर कहता है मेरा सब कुछ पाकिस्तान में, और मैं पाकिस्तान से जाऊंगा भी नहीं। और एक वो है जो एवनफील्ड अपार्टमेंट में रहता है और उसके मालिकों का पता भी नहीं, और 50 रुपए का बॉन्ड भर के झूठ करके प्लेटलेट बना के बाहर बैठा हुआ। पहली दफा दी, उससे पहले जो है सऊदी अरेबिया जाके बैठ गया था माफी मांग के। दोनों का कोई मुआवजा नहीं हो सकता। अगर आप ये समझती हैं कि इमरान खान ने तोशा खाना किया, तो तोशा खाना ने उसे असूल के मुताबिक घड़ी खरीदी। उनके बारे में क्या ख्याल है जिन्होंने तोशा खाने में एक पैसे भी नहीं दिए, जिन्होंने कीमतें कम लिखवाई और वो बता बाहर घूम रहे। असूल की बात तो ये थी जितना पुराना केस पहले उसको करते, सबको उठा लेते ना। अगर तुमने बराबरी का सलूक करना था, जिसका नाम तोशे खाने में आया सबको उठाओ। नहीं तो मेरी बात सुने ना, पीडीएम तो ये कहती है कि जब खान साहब की हुकूमत थी तो आपने फरियाल तारपुल के ऊपर केसेस नहीं बनाए, उन्हें नहीं गिरफ्तार किया गया, जरदारी साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया खान साहब की हुकूमत में। मुझ पे कत्ल की वारदातें हुई। तो बताओ जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में ISI का क्या दखल था? क्यों ISI ने टेक ओवर किया था? कौन था उस हुक्म के पीछे? वो वीडियो सर्विस नहीं आई हुई है, उसका जवाब तो देते नहीं है। क्यों नहीं? वो JIT बार बार क्यों तब्दील करनी पड़ रही है जो इमरान खान ने के हमले के ऊपर बनी थी? और अगर कानून में, पाकिस्तान के कानून में इस चीज का हक आम शहरी को है कि वो अपना जिसमें भी शक हो उसका नाम नामजद कर सकता है, तो उस इमरान खान ने कौन सा गुनाह कर दिया कि उसने उनके नाम ले दिए जिसको उन पे शक था? क्या कसूरी ने जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम नहीं लिया था? क्या बेनजीर भुट्टो ने मुशर्रफ का नाम नहीं लिया था? बिल्कुल ठीक है। FIR काटो, FIR काटो। किसी एक जर्नल को कहना तमाम इंस्टीट्यूशन को बुरा कहना नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब आपके वक्त। गंदे हो जाए उसकी वजह से, लेकिन अगर उस गंदे अंडे की हिफाजत के लिए पूरी इंस्टीट्यूशन खड़ी होती है तो इंस्टीट्यूशन गंदी होती है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम साहब आपके वक्त का। डारी साहब का रुख कर लेते हैं। डारी साहब, आपने फिरदौस साहब की गुफ्तगू सुनी, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, FIR क्यों नहीं काटी गई? उस सूबे में जो है हुकूमत खान साहब की थी, अगर एक जनरल के ऊपर बात की जाती है तो तहकीकात हो सकती हैं, तफ्तीश हो सकती है, हमारा कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है। अगर खान साहब ने एक वीडियो बना भी दी, एक पैगाम दे भी दिया कि जी मेरी सूबे में हुकूमत है और मैं इस मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुका हूँ, लेकिन एक शख्स की जो कि फौजी जर्नल है उसकी FIR नहीं काटी गई। देखिए, ये हमने इमरान खान के 3.5 साल दौरे हुकूमत में भी देखा कि उनकी हुकूमत ने कितनी मुदाखलतें थी। सबसे बड़ी मिसाल तो आपको नवाज शरीफ की देंगे कि जो 50 रुपए के बॉन्ड के ऊपर यहाँ से गए, किसने निकाला? ये बाजवा ने उनको निकाला यहाँ से। इमरान खान तो कहते थे 7 अरब रुपए का बॉन्ड भरो। अब बात सारी ये है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा, कोई भी जो है अवामी हुकूमत, पब्लिक इलेक्टेड हुकूमत नहीं चल सकेगी। इसीलिए हम कहते हैं ये झगड़ा इस बात का चल रहा है कि इस मुल्क को चलाएगा कौन? आया इस मुल्क को 22 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे या 2-3 सरकारी 22 ग्रेड के अफसर चलाएंगे? झगड़ा इसी बात का है। तो बात यह है कि
जैसे इन्होंने फिरदौस शमीम ने कहा तोशा खाना, अरे भाई तोशा खाना के लिए तो आप अब उनको कौन हो जिन्होंने गाड़ियां नाजायज ली जो कि गैर कानूनी है। बिल्कुल ठीक है, तोशा खाना में तो सबके नाम है, खान साहब समेत जरदारी साहब और नवाज शरीफ के भी जो हैं वो नाम तोशा खाना में मौजूद। अब देखना ये है कि आने वाली सूरत हाल किस जानिब जाती दिखाई देती है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जो आता है, अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।